आज तक जितनी भी हिस्ट्री की किताबें पढ़ी हैं, उनसे मैंने सिर्फ एक सबक सीखा है। नो, इट्स नॉट द रीजंस फॉर द फेलियर ऑफ द 1857 वॉर या जिना के 14 पॉइंट्स। वैसे तो इनसे भी बहुत कुछ सीखा है, बट जो मेन सबक था वो ये है कि जो कंट्रीज हम अपने इर्द गिर्द डेवलप देखते हैं, जहाँ पॉवर्टी कम है, लोग एजुकेटेड हैं, जीडीपी अच्छा है और नौकरियां भी लोगों के पास हैं, ये सब इनके पास आसमान से उतर कर नहीं आई, ना ही कोई मिरेकल हुआ। Rather, these countries went through a process commonly known as industrialization. Big word. शायद इसीलिए हमारी हुकूमत इस लफ्ज़ से डरती रही and we were never able to effectively achieve it. All these developed countries that we see around us are there as a result of this big word. Industrialization is essentially when nations transition from agriculture to manufacturing. Or it was the Industrial Revolution in Britain which truly led them to where they are today. Henry Ford का नाम सुना है? एक ऐसा शख्स who revolutionized the way cars were made and was an icon. अगर पाकिस्तान को देखें तो we all know कि हम अभी तक एक agricultural economy है, लेकिन अगर हम एग्रीकल्चरल इकोनॉमी से निकलकर एक मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबलिंग वाली बड़ी इकोनॉमी बन जाएं, तो इससे हमारी प्रोडक्ट्स की कंपेटिटिवनेस बहुत बढ़ जाएगी और हम इंटरनेशनल मार्केट में अपनी एक बहुत बड़ी पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। हमारे यहाँ इस वक्त आईटी एक्सपोर्ट्स ट्रेंड कर रही हैं और इस सब में हम एक बहुत ही बेसिक सी रियलिटी को इग्नोर कर रहे हैं। वो ये कि हमारी जैसी बड़ी पॉपुलेशन इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बगैर डायरेक्टली सर्विस बेस्ड इकोनॉमी पर शिफ्ट नहीं हो सकती। और अगर हम हिस्ट्री देखें तो ब्रिटेन और जर्मनी जैसी कंट्रीज कभी भी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी से मॉडर्न सर्विसेज की तरफ डायरेक्ट शिफ्ट नहीं हो गई, बल्कि इन कंट्रीज ने सदियों तक फैक्ट्रीज बेस्ड ग्रोथ को एक्सपीरियंस किया था। अच्छा है, आईटी एक्सपोर्ट्स होनी भी चाहिए और बढ़नी भी चाहिए, बट व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स? इट मीन्स सर्विसेज दैट कंट्रीज प्रोवाइड ओवरसीज like websites, IT support, online education, remote consulting and stuff like that. The government is targeting a stunning $25 billion का IT exports का figure by 2029. Which is an 8-fold jump from the $2.6 billion in IT export remittances received last year. जो evidence है that the sector is expanding very quickly. The question isn't why these became so popular, but it's why this software development is not going to be enough for a country like Pakistan to properly progress. जैसे हमने बात की, Pakistan is a developing country. In order to achieve the status of a developed nation, we can't just hop onto the bandwagon of software exports and expect to become a first world country within minutes. ऐसे तो नहीं होता है। कौन सा F स्टूडेंट एकदम से डिस्टिंक्शन वाला स्टूडेंट बन जाता है? The reason सॉफ्टवेयर पे फोकस करना हमारे लिए अभी नहीं काम करेगा is due to multiple reasons. Number 1, our unskilled labor force with little to no training and not a very wide skill set. Number 2, our lack of infrastructure. However, it's also unfair to assume that Pakistan will continue on the same path for 1,000 years. In fact, the country can change its trajectory quite quickly if we focus on the right things. So, masla kya if we focus on software exports like the rest of the world? Well, firstly, all these other countries are already developed enough to do that because they've effectively gone through the process of industrialization, which is why they are now able to focus on software exports. It's like एक बच्चा जिसको गिनती नहीं आती, आप उससे बैठ के अलजेब्रा करवाने लग जाएं, पहले 1 2 3 सीखना होगा ना? That's exactly the case with us. We want to start software exports, but हमने industrialization तो achieve ही नहीं की, at least not yet. लेकिन एक secret है, which is not that big of a secret. We aren't that far from doing it. While overall adult literacy rates hover just above 60%, in urban areas, they have climbed past 70%. Or youth literacy in major areas is over 90%. All these stats show positive progress. Lekin this gain in basic literacy is not strong enough for us to suddenly launch a massive high-end services industry. Pakistan का issue ही ये है कि any sort of money we make stays at the top of the pyramid, and to wish for it to trickle down would be too unrealistic. मतलब अमीर लोग अमीर होते हैं
और गरीब लोग ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाते। अगर हम सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स के ऊपर ही रिलाई करते रहेंगे तो हम लोग वेल्थ कंसोलिडेशन वाले इशू को सिर्फ बढ़ाएंगे एंड वी विल ओनली फीड इनटू द एलीटिस्ट कैप्चर्स एंड वी डोंट वांट दैट, or at least we shouldn't if we truly want to be a developed nation और सिर्फ 1-2 लाख अमीर लोग ना हों। In Asia, nations like Japan and South Korea ने industrialization के जरिए enormous manufacturing sectors बनाए, making cars, steel, electronics before evolving into the sophisticated economies we see today. सिर्फ service exports पे rely नहीं किया, rather they built factories, invested in local manpower और हजारों को नौकरियां दिलाईं। इस सब से एक मिडिल क्लास बनी, सो डिमांड इंक्रीज्ड और इकोनॉमी ने भी ग्रो किया। सिर्फ 1-2 स्टेट्स हैं जिन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन के बगैर डेवलपमेंट अचीव की, और वो हैं ईदर नंबर 1 रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज या फिर नंबर 2 दे हैव वेरी स्मॉल इकोनॉमीज। सो नेचुरल रिसोर्सेज में आती हैं यूएई, ओमान, कतर, वही गल्फ स्टेट्स जिनको तेल की वजह से एक बहुत बड़ी एडवांटेज है। लेकिन पाकिस्तान डजंट हैव दिस ब्लैक गोल्ड दैट दे डू। सो रोने धोने से बेहतर है हम वो पाथ चूज करें जो काम भी करेगा और जिसके लिए हमारे पास प्री रिक्विजिट्स भी हैं। बट नंबर 2 जो मैंने बोला कि छोटी इकोनॉमी होनी चाहिए, इससे मुराद है लेस पीपल एंड वी डोंट हैव लेस पीपल, सो वो आइडिया भी गया। एक एग्जांपल देती हूँ। ऑन फेस वैल्यू India's IT services have recently been thriving, but they tried to do something which didn't play out as well as they had hoped. They tried to ignore industrialization, बिल्कुल जैसे हम करना चाह रहे हैं, और वो इतना कामयाब नहीं हुए। There are too many poor people in India despite their large IT exports. Only the people who were educated enough gained from the IT boom, और बाकी सब पीछे रह गए। बांग्लादेश और इंडोनेशिया ने एक डिफरेंट कोर्स अपनाया। Both nations decided to focus first on building industrial capacity, prioritizing textiles, garments and light manufacturing, और इसके थ्रू उन्होंने फैक्ट्रीज बनाई जिनमें बहुत सी बांग्लादेश की women also began working, और इससे कंज्यूमर बेस फॉर एजुकेशन, हेल्थ केयर और बेहतर हाउसिंग भी बढ़ी। जबकि वो मसले फेस करते हैं, they have used industrialization to anchor their growth rates, और अब IT सेक्टर के साथ कैचअप करना उनके लिए बहुत आसान हो गया है। Pakistan has reason to be hopeful that it too can follow a similar path. हमारी population अभी एक ऐसी जगह पर है where we have more new workers entering the labor force each year than the ones leaving it. और ये workforce पहले से भी ज़्यादा educated है, तो फैक्ट्री वाले कामों के लिए बहुत अच्छी तरह suited है। बिजली भी है, if you don't consider its price for a moment, which is necessary for industrialization. जैसे जैसे ये इंडस्ट्रीज मैच्योर करेंगी तो दे विल बी एबल टू कॉम्प्लीमेंट द राइजिंग IT सेक्टर एज वेल। ये बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव हो सकता है अगर हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाएं जिससे हम इतनी ज़्यादा नौकरियां जनरेट कर पाएं जिनसे इन सब न्यू लोगों की स्किल सेट मैच करे। फैक्ट्रीज, बेशक टेक्सटाइल मिल्स, ऑटोमेटिव प्लांट्स या इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली लाइंस हैव हिस्टोरिकली प्रूवन कि ये ज़्यादा वर्कर्स को एम्प्लॉय कर लेती हैं, इवन जो इतने एजुकेटेड ना हो। इससे वर्कर्स को भी एम्प्लॉयमेंट मिलती है और वो तनख्वाह भी कमाते हैं। सो गवर्नमेंट को कोई ऐसी कंडीशंस बनानी होंगी जिनसे लोकल और फॉरेन इन्वेस्टर्स दोनों अट्रैक्ट होके आएं और हमारा ट्रांसपोर्ट, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करने में हमारी मदद करें। बेहतर गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करके पाकिस्तान एक ऐसी मिडिल क्लास बना सकती है जो ना सिर्फ अपने आप को सस्टेन करेगी लेकिन पूरी इकोनॉमी को डेवलप करने में बहुत काम आएगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन इन अदर वर्ड्स इज नॉट द एनिमी ऑफ सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स, बल्कि इट इज योर मोस्ट रिलायबल फाउंडेशन।